Hello everyone, dear investors. I was reading a book which I also recommend as a part of our premium membership and training program, Common Stocks and Uncommon Profits. It's by Phil Fisher. Very interesting book, and although it has been written, I mean, some of you can argue कि ये कौन से ज़माने में लिखा गया है? Is it even true now? Well, yes, I think a lot of the points mentioned by Fisher in those days are still true. They still hold true. वेल द फर्स्ट पॉइंट इज़ देखिए जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन हुआ है एज अ ह्यूमन बीइंग you were born, what was the first toothpaste that you used? It was Colgate. So did you go out and check whether Colgate is listed? If it was listed that time and if you were buying it, आपने अभी देखा कि क्या उसका प्राइस है, क्या ग्रोथ हुआ है, हैज़ इट गॉट 60+% मार्केट शेयर? If yes, check the ROC, ROE, and if all these are yes, then you can move further in your analysis. Then again, जब आप पैदा हुए तो कौन सी गाड़ी चर्चा में थी? Which car was hanging around? Which is the only listed company in India in terms of four wheelers? If it is Maruti, how much wealth has Maruti created? Has it created wealth? Hell yes, it has created a lot of wealth. But what we need to find out is it sustainable for the next 25 years? Is it a common stock which is giving us uncommon profit? So in this video, let's look at these examples. What are or which are India's common stocks as mentioned by Phil Fisher that can give us or that are giving us uncommon profits, and if they are giving us, till when can we expect those uncommon profits? जब तक वो गाड़ी पलट ना जाए या मैनेजमेंट चेंज ना हो जाए. सो अगेन व्हेन यू वर बॉर्न, अगर आपका घर कभी पेंट हुआ, what kind of paint they were using? Was it Asian Paints that time, or was it some other paint? If it was Asian Paints, is it still value? Is it still the market leader? Yes. Has it got 55+% market share in a certain paint segment, especially the retail segment? Yes. फिर आप जब स्कूल गए, थोड़े बड़े हुए, आपने पहला फेविकॉल यूज़ किया, पिडिलाइट. क्या आज भी फेविकॉल मार्केट लीडर है? यस. So what I'm trying to say by all these examples, I'll add one last example here. जैसे बजाज का स्कूटर या हीरो होंडा मोटरसाइकिल एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर कॉमनली यूज ड्यूरिंग द डे. अब अभी जो जनरेशन आएगा, what will they see? They will see a company like CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. वो क्या देखेंगे, भाई मैंने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आई वॉज 20, फिर 20-25 साल बाद इज CDSL स्टिल द लिस्टेड मार्केट लीडर? सो बाय द वे CDSL पे एक सेपरेट वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे. But these are your common companies around you. They are very much around us. They are common stocks that have given us so far. Past says that they've given us uncommon profit. मतलब एशियन पेंट्स अगर आप देखो तो वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट इट. इट हैज़ गिवन 1800 टाइम रिटर्न्स, एक्चुअली 2000 टाइम्स रिटर्न्स. और अभी अगर मैं प्राइस देखूँ, ये तो मेरा प्राइस था 1800 पर शेयर का प्राइस था, या 2000 पर शेयर. अभी तो 3000 का शेयर है. सो इट्स एक्चुअली गिवन double of what we can even imagine since 1990 till 2020, for the last 30 years. Why are these common stocks able to give us uncommon profits? Why? That's the question that I want to ask a lot of you, and I would need your help. You can write in your comments, we'll discuss. Let's have a discussion panel on this video. क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये जो जितने भी नाम मैंने बताए, सबसे पहली बार हेयर ऑयल यूज़ किया कौन सा? पैराशूट, विच इज़ द कंपनी मैरिको. डज इट स्टिल एग्जिस्ट टुडे? येस. हैज़ इट गॉट द मार्केट शेयर इन हेयर ऑयल? येस. एंड टुडे तो आज तो जैसा आपने मेरा मैरिको का वीडियो देखा होगा, 1 आउट ऑफ एवरी 3 इंडियंस यूजेस पैराशूट हेयर ऑयल. तो ये सब जो कॉमन अपने आसपास की चीज़ें हैं, अगर आप वो यूज़ करते हो, then it becomes easy for us to identify which are the great companies. Because as Warren Buffett said, and then I heard it from Ramdev Agarwal, and then I keep hearing it from everybody, कि there are 3 kinds of companies: gruesome, good and great. सो गुड कंपनीज़ में आपको ROCE 15% मिल जाएगा, 12% तक मिल जाएगा. ग्रेट कंपनीज़ में ROCE 30% प्लस में मिल जाएगा, जैसे मैरिको है, ITC है, एंड ऑल ऑफ दीज वट एवर. आई मीन दीज आर ग्रेट ROCE कंपाउंडर्स, ROCE रिटर्न जनरेटर्स. लेकिन क्या सस्टेनेबल कितना है? बिकॉज वी आर बेटिंग फॉर द नेक्स्ट 25 years और फॉर द नेक्स्ट 30 years. हाउ सस्टेनेबल इज़ दिस मॉडल
Will it continue? Like if you ask me today, I gave you an example, CDSL. क्या CDSL sustainable है? We think so, but we'll have to get into the detail in a separate video. There are only two depository services, CDSL and NSDL. मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ CDSL लिस्टेड है, मैंने अभी तक प्रॉपरली वो चेक नहीं किया, बट आई थिंक CDSL इज़ लिस्टेड एंड NSDL अभी शायद होगा नहीं होगा, वी डोंट नो. बट मार्केट शेयर देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा है. लाइक इन माई लास्ट वीडियो आई स्पोक अबाउट NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ऑब्वियसली जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट होगा, इट्स अ विन विन सिचुएशन. सो सस्टेनेबल कॉमन स्टॉक्स विच कैन गिव अस सस्टेनेबल कॉमन प्रॉफिट्स. आई थिंक फिल फिशर के विजडम में हम लोग सिर्फ ये एक वर्ड ऐड करेंगे, सस्टेनेबल, बिकॉज द एवरेज एज ऑफ अ कंपनी टुडे इज़ ओनली 12 ईयर्स. ओनली 12 ईयर्स. 12 साल बाद अपने को पता नहीं वो कंपनी टिकेगी या नहीं, अनलेस दे आर इनटू समथिंग एसेंशियल, दे आर सेलिंग समथिंग इररिप्रेसिबल. यहाँ पे माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस आ जाते हैं. डू दे हैव बैरियर्स टू एंट्री? इज़ देयर एनी थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स? वो 5 फोर्सेस हम लोग एनालाइज करते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद समझ में आता है कि यार ये कंपनी को आप हिला नहीं सकते. आई मीन लुक एट मारुति को आप आज भी फ्रॉम द इंडियन कार बायर साइकी, यू हैव नॉट येट बीन एबल टू डिस्ट्रैक्ट मारुति आज भी है विद अ साइजेबल मार्केट शेयर एंड मार्केट लीडरशिप, आज भी है, राइट? सो आई लीव इट ओपन फॉर यू, गिवन योर कॉमेंट्स, लेट्स डिस्कस, लेट्स कम टू अ कंक्लूजन कि कौन से ऐसे कॉमन स्टॉक्स हैं और जो आप मुझे बता सकते हैं विच हैव गिवन यू अनकॉमन प्रॉफिट्स. टेक केयर, कीप प्रॉफिटिंग एंड टेक, we'll see you again.